All right, traders, a very good afternoon to you all. It's Viral from the Trade Psych, and I welcome you all to post market analysis, outlook, and expectations from the market for next week. So, in this video, we'll discuss about that what will be the some of the crucial levels for the market for Nifty 50 and Bank Nifty for next week. How can we trade those levels, and what bias will be there by seeing the OI data? And also we'll have a look at some of the indexes like IT, metal, auto, and we'll get to know that what is the breadth in the market, what is the breadth of the market, whether all the indexes are falling or whether only Nifty 50 has fallen or whether only mid caps has fallen. Right, so in this video, right, please do watch till end. We'll analyze each and everything in detail. We'll also give some very crucial price action points, right, and we'll also analyze the OI data, what the OI data has been built for Friday, and what is the position of FIS in index futures. So this is one thing which I have been noticing from past days, which is very, very really important in terms of the behavior of index, basically, right? So if you essentially see that index is ruled by the collection of 50 stocks, and whenever I see mid cap index might be trending, but Nifty can be sideways. So it is very, very important to understand that essentially what is the position of FIs in Nifty futures. That only and only that tells you the actual situation of Nifty 50, not the whole market, but Nifty 50. Since Nifty 50 index is an index which can be managed by just pumping or dumping Reliance, HDFC Bank, and Infosys, we it is very crucial for the you know for to it is very crucial to analyze even these stocks. What is IT doing? Because on Friday, if you have seen, Nifty IT index was down by I think 1.7%, and due to which Nifty also went down by 200 points. Right. So we'll understand sectorally also that what can be the situation, and post that we'll also analyze that what can be some of the strategies and strangle ranges for the next week. All right, so these on all will be covered in this video. Please do watch it till end. And before starting the discussion, if you are someone from the Telegram group and you have been watching my videos from long time, please leave a like. While you leave a like, the video gets more support, the video gets more reach. The more you support me, the more I'll be able to help you. Right, if you are someone who is watching the video for the first time, please do watch it till the end. I am sure that you will not go empty handed, you will definitely learn at least something. Right. I'll be leaving the link to my Telegram group in the description box below. In that Telegram group, essentially what we discuss is everything in and out of trading. So if you are an active trader in Indian stock market, whether it's Nifty, whether it's Sensex, whether it's Bank Nifty, you should definitely join that group. If you are someone new watching this video for the first time, please do check out that group. We give our views on intraday stock positions intraday, whether it's intraday, swing, or positional. We also regularly keep giving live intraday updates on markets, whether it's any news, any geopolitical event, anything, right? So please do join that group. You can, it's free of cost as of now. I'm charging no money to join that. It's free of cost, and you get real valuable intraday insights of OI data of stocks, Reliance, what is Infosys doing, what is Reliance doing, and you also get multiple views. All right, so please do join that group. So let's start with the discussion. Already it's 3.5 minutes, right? So let's start with the discussion, and एक बार and as I said, I'll be starting to keep my videos in only and only Hindi. If someone is not familiar with Hindi, they can comment, and if they are not able to understand any part of that video, they can essentially comment in the comment section. I'll be happy to explain it to you. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं निफ्टी से. एक बार पहले डिस्कस कर लेते हैं कि फ्राइडे को क्या हुआ था. अब फ्राइडे को जो प्राइस एक्शन मिला, इसमें अच्छा, बिफोर इवन डिस्कसिंग द फ्राइडेज प्राइस एक्शन, लेट्स डिस्कस सम ऑफ द न्यूज़ फ्लोज. देखो न्यूज़ फ्लोज में क्या है, सबसे पॉजिटिव एज कोई न्यूज़ फ्लो है नहीं. नेगेटिव चीज़ें क्या फैक्टर कर रहा है इंडियन मार्केट? पहला चीज़ टीसीएस का नेगेटिव रिजल्ट. रिजल्ट इतना नेगेटिव नहीं है, बट फ्लैट रिजल्ट है. जो स्ट्रीट को, जो मार्केट को एक्सपेक्ट था कि अर्निंग्स बढ़ के आएगी, रेवेन्यू बढ़ के आएगा, रेवेन्यू कम हो के आया है. प्रॉफिट भले ही आपने 1% 2% बढ़ा दिया हो, बट अर्निंग्स आपका रेवेन्यू कम हो के आया है. अगर इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी का रेवेन्यू कम होके आ रहा है तो दिक्कत है. अब चूंकि
टीसीएस का जो मेजर रेवेन्यू है वो आता है यूएस और यूरोपियन कंट्रीज से। और यूएस ऑलरेडी रिसेशन में चल रहा है, बैक टू बैक दो जीडीपी नेगेटिव रिकॉर्ड हमें मिल चुकी है परसेंटेज में। एंड यूरोप ऑलरेडी रिसेशन में है, तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि नेगेटिव टू फ्लैट ही रिजल्ट आएगा। बट जो इनका रेवेन्यू डिक्लाइन आ रहा है, मतलब रेवेन्यू क्वार्टर क्वार्टर ग्रोथ आनी चाहिए 5% 6% की, तब स्टॉक की प्राइस में आता है 20% राइस 30% राइस। जब क्वार्टर क्वार्टर 6% 7% का आपका गेन हो रहा है और ईयर ऑन ईयर आपका 15 16% का गेन हो रहा है, तब फर्क आता है। बट जहाँ पे आपका रेवेन्यू डी ग्रोथ हो रहा है, तो इट मीन्स देर देर इज अ प्रॉब्लम। सो एक चीज़ ये थी कि मार्केट ये फैक्टर करके चल रहा है और इसीलिए आईटी इंडेक्स भी डाउन था। मैंने ट्विटर पे डाला, बहुत लोगों ने मेरे को ट्रोल किया, एंड some of the trolls were even abusive, so I have respectfully blocked them and reported them. बट क्या होता है ना, लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि लोगों को लगता है अरे, क्योंकि लोग बना के गए थे बुलिश पोजीशन, राइट, कि भाई रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अब रिजल्ट नेगेटिव भी आया तो भी वो रिजल्ट को पॉजिटिव दिखा रहे हैं कुछ ट्विटर पे लोग जिन्होंने कमेंट किया था। तो ठीक है, अब सबकी अपनी समझ होती है। जो मार्केट ने जो एक्सपेक्टेशन रखी थी उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं आया और फ्राइडे को रिजल्ट वो दिख भी गया। सो फर्स्ट नेगेटिव थिंग इज टीसीएस रिजल्ट। सेकंड नेगेटिव थिंग क्या हुई कि यूएस में जो टैरिफ वाली चीज़ चल रही है उस पर बात ये भी चल रही है कि ट्रम्प इज थिंकिंग टू अप्लाई 500% टैरिफ ऑन रशिया, ऑन इंडिया एंड चाइना। वाई? बिकॉज दीज आर द कंट्रीज विच आर इम्पोर्टिंग रशियन ऑयल। तो ट्रंप ने सीधा सिंपल स्टेट बोला कि जो भी कंट्रीज रशियन ऑयल इंपोर्ट कर रही हैं, हम उन पे 500% टैरिफ लगा सकते हैं। सेकंड नेगेटिव न्यूज़ फॉर इंडिया। थर्ड नेगेटिव न्यूज़, जेपी मॉर्गन ने कहा है जो उनके ग्लोबल इंडेक्सेस हैं उनसे वो इंडिया और चाइना का होल्डिंग्स कम करने की बात चल रही है। इसका मतलब है जो बॉन्ड्स हमारे लिस्टेड है, या जो जो हमारे जेपी मॉर्गन जो इन्वेस्ट करता है इंडिया फंड्स में या इंडियन एमएससीआई इंडेक्स और इंडियन म्यूचुअल फंड्स में, उनकी जो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग्स है वो जेपी मॉर्गन सोच रहा है कम करने। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो, इंडिया और यूएस के रिलेशन हो रहे हैं थोड़े बहुत स्ट्रेन। तो उसकी वजह से हो क्या रहा है कि यूएस प्रेशराइज कर रहा है कि आप इंडिया को परेशान करो किसी ना किसी तरीके से ताकि वो हमसे ट्रेड डील करे। अब नाउ इंडिया इज ऑल्सो रेस्ट्रेनिंग कि हम एक अनफेयर ट्रेड डील नहीं करेंगे। और इसी वजह से अभी तक एक कोई अच्छी ट्रेड डील हो भी नहीं पाई है बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। एवरी डे वी सी द न्यूज़ दैट यस अ ट्रेड डील कैन हैपन विद इन नेक्स्ट 48 to 24 आवर्स, ये होगा वो होगा, बट हो कुछ नहीं रहा है। नाउ इंडियन डेलीगेशन इज विजिटिंग यूएस टू फाइनलाइज द टर्म्स ऑफ दैट ट्रेड डील, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो ये तीन मेजर नेगेटिव है। पॉजिटिव ऐसा कुछ आया नहीं है। इंडिया का पर्सनल इनकम टैक्स भी डिप हुआ है, इसका मतलब लोग गरीब हो रहे हैं, राइट। और जीएसटी कलेक्शन भी डिप हुआ है। सो जो हमें लग रहा था पिछले 3 4 महीने में, जिसके बेसिस पे मार्केट ऊपर आया था, निफ्टी फिफ्टी ऊपर आया था कि इंडियन इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है, हमने आरबीआई ने रेट कट भी किए, एग्रेसिव रेट कट किया 50 बीपीएस का, एंड हमने इनकम टैक्स में भी छूट दी, तो उनका इफेक्ट आएगा एफएमसीजी में, कंस्ट्रक्शन में। बट जो हमारे बैंकिंग है, जो हमारा आईटी है, जो हमारा मेटल इंडेक्स है, ये सब चलते हैं हमारे इकोनॉमी पे। जब इकोनॉमी परफॉर्म नहीं करी तो ये सब सबड्यूड रहेंगे इंडेक्सेस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं नेगेटिव चीज़ें फैक्टर करने की, एंड दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि भाई मार्केट में चल क्या रहा है, कि मार्केट गिर क्यों रहा है। अगर मैं आपको आके यहाँ पे से लेवल बता दूँ, वो मेरे से बड़े बड़े ट्रेडर्स, मेरे से बड़े बड़े एनालिस्ट कर सकते हैं। बट रियल वैल्यू, रियल इन्फॉर्मेशन कहाँ है कि अगर if something is happening in the markets, then you have to understand that why it is happening, right? So let's start with the discussion कि फ्राइडे को मार्केट में हुआ क्या। अब एक बार डेली पे मैं आपको दिखा देता हूँ। डेली में पिक्चर कुछ ऐसी लग रही है, एंड थर्सडे को हमने प्रायर डेली लो के नीचे क्लोजिंग दी थी। एंड ये वाली जो रैली आई थी, ये वाली पूरी मैं आपको पॉइंट करके भी दिखा देता हूँ। ये वाली जो पूरी रैली आई थी ना, इसका काइंड ऑफ ये एक स्ट्रॉन्ग रैली थी। और लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक बार ये सारी लेवल हटाता हूँ, नई लेवल्स बनाएंगे। व्हाट स्ट्रीट्स वर एक्सपेक्टिंग, व्हाट पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि भाई ये एक बुलिश पोल एंड फ्लैग का पैटर्न यहाँ से क्रिएट होगा। तो बुलिश पोल एंड फ्लैग का पैटर्न यही होता है, बट इस पोल एंड फ्लैग का ब्रेक डाउन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें हमने मेंशन भी किया था थर्सडे को कि एक वीक क्लोजिंग है। मार्केट ओपन हुआ गैप डाउन, ठीक है, अराउंड रफली 25 200 ओपन हुआ, फिर 150 पे जाके वो, चलो हम 5 मिनट पे डिस्कस करेंगे। बट ये फ्राइडे को एक बहुत नेगेटिव क्लोज आया है, एंड मार्केट एग्जैक्टली अब एक ऐसे जंक्चर पे है जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया था। तो अब यहाँ से प्रोबेबिलिटीज क्या बनती है, लेट्स कम ऑन लेट्स डिस्कस। ऑलराइट, अब देखो,
5 मिनट्स में एक बार देख लेते हैं कि फ्राइडे को मार्केट खुला गैप डाउन, देखो यहाँ पे खुला। और ये ये हमेशा होता है मार्केट में, पता है। और ये मैं आपको बताता हूँ कि अगर मार्केट, देखो ये जो मूविंग एवरेजेस हैं ये अप्लाई कर लेना अपने चार्ट्स पे, 5, 20, 50, 100 एंड 200। ठीक है, अब गैप डाउन को डील कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ। अगर मार्केट में गैप डाउन हो गया, 80 to 90% ऑफ टाइम उस गैप डाउन का पुल बैक आएगा। क्यों? क्योंकि गैप डाउन जब होता है तो स्ट्रीट एक्सपेक्ट करके जाती है कि गैप डाउन होगा, तो इसलिए वो शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बिल्ड करके जाते हैं। अब जो शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बिल्ड होके गई उनको गैप डाउन में बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, तो वो पोजीशंस बुक होती हैं। प्लस यहाँ पे कुछ एडिशनल बाइंग ऑर्डर्स आता है इन द होप कि मार्केट ऊपर चला जाए, कि हम गैप डाउन के उसको, गैप डाउन के जो डिप है उसको बाय कर ले। तो यहाँ पे एक बाय ऑर्डर आता है और एक एग्जिट ऑफ शॉर्ट ऑर्डर आता है। तो ये जो डे का पहला लो बनता है ना, ये बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि यहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स का एक डिमांड जोन बन जाती है, क्योंकि ये पुल बैक आता है यहाँ से। ठीक है, अब व्हेन दिस ब्रेक्स डाउन, अगर ये टूटता है तो फिर एक ट्रेंडिंग मार्केट मिलता है, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे बाइंग पोजीशंस बिल्ड की थी अब उनका भी एसएल लग चुका है। राइट, वो यहाँ पे बाय करते हैं, एसएल देंगे कि हम कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल देंगे। अगर मार्केट ऊपर गया तो ठीक है, हम यहाँ बुक कर लेंगे। अब मार्केट ऊपर नहीं गया, यहाँ पे आ गया, तो यही हमारा एसएल होगा। और जैसे ये एसएल ट्रिगर होता है, एक आपको एक और ट्रेंडिंग फॉल मिलता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है ऐसे। अच्छा, अब गैप डाउन के बाद पुल बैक कहाँ तक आ सकता है? देखो पुल बैक दो प्लेसेस तक आ सकता है। अगर आप सप्लाई डिमांड मान सकते हो तो प्रायर डे क्लोजिंग तक आ सकता है पुल बैक। तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ तक पुल बैक आ सकता है। अगर इसके ऊपर पुल बैक आता है, कुछ ऐसा यहाँ तक आता है, तो वो एक डिप करके यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करता है। तो अगर जैसे मान लो यहाँ मार्केट क्लोज हो और मार्केट यहाँ गैप डाउन खुल रहा है इस पॉइंट पे, सो इफ दिस गैप इज कवरिंग एंड मार्केट इज सस्टेनिंग अबव प्रायर डे क्लोजिंग, तो ये बुलिश साइन होता है। तो प्रोबेबिलिटी होती है कि ये गैप का 60-70% कवर हो जाए। और अगर मार्केट यहीं से टर्न कर गया, लाइक इन दिस केस मार्केट यहीं से टर्न कर गया, और जो डे का मॉर्निंग लो बना था वो ब्रेक कर दिया मार्केट ने, तो मार्केट को एक ट्रेंडिंग फॉल मिल जाता है। अब जिस दिन मान लो मार्केट को ट्रेंडिंग नहीं जाना, तो उस दिन क्या करेगा, इसी रेंज में फंसा रह जाएगा। तो ये हमने अलर्ट भी किया था कि जो निफ्टी का आईवी मुझे देख के लग रहा था प्रीमियम्स बचे नहीं थे, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये मिल जाएगा। बट जैसे ही मार्केट ने ये डे मॉर्निंग का डे लो तोड़ा, मार्केट को एक बहुत अच्छा फॉल मिला। ठीक है, उसके बाद जाके मार्केट पोस्ट आई थिंक 11 o'clock जाके मार्केट साइडवेज हो गया, बट एट द एंड ऑफ द डे मार्केट को एक फॉल देखने को ही मिला। ठीक है, फिर बीच में हमने बैंक निफ्टी शॉर्ट करने का ट्राई किया, बट बैंक निफ्टी का मैं एक बार चार्ट दिखाता हूँ। हमने बैंक निफ्टी में कुछ ऐसा प्राइस एक्शन हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। वी ट्राइड टू शॉर्ट बैंक निफ्टी एट दिस प्लेस, बट यहाँ पे एक न्यूज़ आती है कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंक्रीज द एफडीआई लिमिट। जो गवर्नमेंट के पीएसयू बैंक्स हैं उसमें और गवर्नमेंट अपना शेयर बेचेगा। तो यहाँ पे ये स्पाइक आया, बट ये स्पाइक चला नहीं। तो बैंक निफ्टी में मैं अभी भी बेरिश ही हूँ। 56,500 के नीचे एक बेरिश ट्रेड ट्रिगर होगी, वो मैं बाद में आपको बताता हूँ। तो ये हुआ पूरा फ्राइडे को, और फ्राइडे को एक नेगेटिव क्लोजिंग बन के आई है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कि भाई हाउ टू ट्रेड नेक्स्ट वीक। वीकली पे हम बहुत टाइम से ये डिस्कस कर रहे थे कि ये एक प्राइस एक्शन चल रहा है, मार्केट में एक प्राइस एक्शन चल रहा है। जिस प्राइस एक्शन का अगर आप ये देखोगे, इस प्राइस एक्शन की मैं बहुत लंबे टाइम से आई वॉज टॉकिंग अबाउट, एंड मैंने ये बताया भी था कि हमारी एक पहली अपॉर्चुनिटी होगी जो 25,500 पे होगी। जो मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं उनको मालूम है कि ये प्राइस एक्शन मैं आई थिंक 3 to 4 मंथ्स में बता चुका कि मार्केट ऐसा ट्राई करेगा, या तो एक क्लासिक डबल टॉप या एक लोअर डबल टॉप बनाने का, और तीसरी प्रोबेबिलिटी ये थी कि एक हायर डबल टॉप बनाने का। बट ये जर्नी निश्चित है मार्केट की, और ये एक बिगर सेल ऑफ होगा जो यहाँ पे आएगा, और फिर ये एक ऐसा मूवमेंट भी आएगा। तो ये मैंने लास्ट टाइम हिस्ट्री में पहले ये बताया भी था कि हम ऐसा मूवमेंट देख भी चुके हैं ऑलरेडी। ये देखो यहाँ पे हम देख चुके हैं कि इतना बड़ा जो बेरिश रन था उसका 80% रिट्रेसमेंट हुआ, और फिर ये मार्केट यहाँ पे आया, वीकली 100 वापस वीकली 50 तक आया। तो इन द करंट सिनेरियो अभी यही हो सकता है कि फिर मार्केट वीकली 50 तक आएगा, यहाँ से फिर एक यहाँ से बाउंस आएगा, फिर एक यहाँ से सेल आएगा, फिर एक ये बाउंस आएगा, और फिर क्या होगा कि जब मार्केट की अर्निंग्स फेयर मतलब बढ़ने लगेंगी, तब ये एक ऐसा इस रेंज को ये बुलिश एंड पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट करके ऐसा 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 मार्केट कहीं रफली यहाँ बॉटम आउट करके मार्केट ये ब्रेकआउट करेगा। ये एक आइडियल प्राइस एक्शन हो सकता है अगर निफ्टी 20,000 और 15,000 हिट करता है। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल पॉइंट टू एक्यूमुलेट फॉर 30,000 निफ्टी। ठीक है, बट बहुत लंबी जर्नी बाकी है, इतना लंबा डिस्कस नहीं करते। डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट वीक कैसे होगा। ठीक है,
अब देखो, सिंपल हमारा जो एक रिचुअल है, सेंटिमेंट नेगेटिव है। अगर मेरे को गैप अप भी मिलता है मंडे को, मैं आई थिंक आई डिस्कस दिस ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम कि गैप अप गैप डाउन के केस में क्या किया जाए। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक बड़ी कैंडल बनी थी, यहाँ पे टॉप बना था, क्योंकि पिछले 3 वीक्स का एक ही वीक में रिट्रेस हो गया था, तो यहाँ पे इंडिकेशन था। अभी पिछले एक वीक का भी जो बड़ी ये ग्रीन कैंडल है, तो ये रिट्रेस नहीं हुआ है। बट वीकली में, सिंस वी हैव क्लोज बिलो प्रायर वीकली लो, तो हमारा सेंटिमेंट नेगेटिव है। आई विल बी, मेरा बायस नेगेटिव है, बट आई विल टेल यू कि वो बायस मेरा नेगेटिव से पॉजिटिव कब चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, एक हम प्राइस एक्शन एंटिसिपेट कर रहे हैं, और ये वीकली की बिलो 5 EMA की क्लोजिंग भी है। लास्ट टाइम वीकली के बिलो 5 EMA के नीचे क्लोजिंग आई थी, तो 2 वीक्स मार्केट साइडवेज रहा था, और उसके बाद थर्ड वीक मार्केट में बड़ा फॉल आया था। तो एक प्रोबेबिलिटी ये भी है कि हो सकता है कि फर्स्ट वीक मार्केट ट्राई करें ये नीचे जाने का, बट आके ऊपर यहाँ क्लोज दे दे, क्योंकि अब 2 वीक से मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा है बियरिश, तो हो सकता है यहाँ पे 2 वीक्स का ऐसे रफली एक पॉज मिले, फिर एक बड़ा कैंडल यहाँ पे आपको मिले ऐसा। तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी है, और ये मेरे को डिसेंट इसकी प्रोबेबिलिटी लग रही है कि ऐसा ही होगा मार्केट। तो ट्रेड आपको कैसे करना है नेक्स्ट वीक मैं आपको बताता हूँ। सिंपल, एक बड़ा, आप यहाँ पे आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है, लॉन्गर टर्म का प्राइस एक्शन। एक यहाँ पे आपका एम पैटर्न मार्केट ट्राई कर रहा है क्रिएट करने का, तो बड़ा टारगेट आपका यही है। ठीक है, मार्केट कुछ ऐसा ट्राई करने का कोशिश कर सकता है, बट उसके लिए फॉर दिस टू कंटिन्यू आपको प्रायर वीक का लो ब्रेक करना पड़ेगा, विच इज रफली रफली 25,127, 25,120 के अराउंड है रफली। और वो एक ये लेवल भी है कि जहां से मार्केट ने ब्रेक डाउन किया था। अब बहुत क्रूशियल पॉइंट, लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली। ठीक है, ये हमारा प्रायर वीकली लो हो गया, विच इज 25,150। अगर मार्केट 25,150 के नीचे जाता है मंडे को, और एक अर्ली क्लोज देता है ऐसा कुछ, अर्ली क्लोज, रिपीट आई रिपीट अर्ली क्लोज, तो मार्केट के पास प्रोबेबिलिटी है 25,000 हिट करने की। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट के पास 25,000 हिट करने की। 25,000 पे एक सपोर्ट आ सकता है मार्केट के पास, क्योंकि मार्केट ने इस रेंज में, बहुत ध्यान से सुनना, मार्केट ने इस रेंज में बहुत टाइम ट्रेड किया है, एटलीस्ट 5 to 6 वीक्स। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्डर बिल्डिंग है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन है। अगर ये जोन ब्रेक होता है, तो 80 to 90% आपको ये मूव देखने को मिल जाएगा, और मैं मार्केट को यहाँ पे पोजिशनली शॉर्ट कर दूंगा, अगस्त फ्यूचर्स, सितंबर फ्यूचर्स। बट बहुत मुश्किल है इसके नीचे करना। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। लास्ट टाइम व्हेन दिस हैपेंड, लास्ट टाइम कि इतना बड़ा बेस यहाँ पे बिल्ड हुआ था, ये देखो, आई टेल यू, ये बेस जो था मार्केट का, ये देखो, इवन ये जो बेस क्रिएट हुआ साइडवेज में, जो इलेक्शन का वॉलेटिलिटी थी, उसको भी जो यहाँ पे ब्रेक आया 22,000 तक का, वो भी एब्जॉर्ब हो गया, और वो और रैली आई खिंच के। तो डो पर्सनली आई डू नॉट एक्सपेक्ट 25,000 to break down and a weekly closing below 25,000 next week, but if it happens देन पोजिशनली शॉर्ट बनेंगे बहुत अच्छे, जो हमारे टारगेट है 22,500 तक, और फिर नीचे 22,000 तक। ठीक है, वो एक डिफरेंट टॉपिक है, बट ये मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था जब मैं बुलिश था, कि आई डू नॉट एक्सपेक्ट द जोन ऑफ 24,500, ये जो एक पूरा जोन है, दिस कंप्लीट जोन, आई डू नॉट एक्सपेक्ट दिस टू ब्रेक डाउन सो इजीली। अगर होता है तो हम वी विल बी वेरी बेरिश। ठीक है। तो मार्केट देखो क्या कर सकता है यहाँ से प्रोबेबिलिस्टिकली, मैंने जो एक प्राइस एक्शन आपको बताया था लास्ट वीडियो में ऑल्सो, मार्केट ट्राई करेगा, ये ब्रेकआउट दिया है, इस ब्रेकआउट का रिटेस्ट करके मार्केट ये ट्राई कर सकता है। सिंपल, ब्रेकआउट रिटेस्ट कंटिन्यूशन। बट इसका कंटिन्यूशन का कंफर्मेशन कब मिलेगा, आओ डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज़, 25,150 के नीचे अगर निकलता है मार्केट 120 के नीचे, एक बार डेली पे देख लेंगे प्रिसाइज लेवल क्या है, तो मार्केट को फिर नेक्स्ट लेवल नीचे मिलेगा 24,800 का। ओ सॉरी, 24,800, 24,800 अगर ब्रेक डाउन होता है, तो सेकेंड पॉइंट ऑफ सपोर्ट होगा 24,500। 24,500 ब्रेक हुआ तो 24,000, हर 500 यहाँ पे 24,120 ब्रेक डाउन हुआ, तो 25,120 ब्रेक डाउन हुआ, तो 24,800 आई थिंक आ जाएगा, बट पहला हर्डल आएगा 25,000 का। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग 25,000 टू गेट ब्रोकन ऑन द डाउन साइड। मैं बेरिश हूँ वीकली प्राइस एक्शन को देख के, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ मूव टिल 25,000, और छोटा मोटा मोमेंटम, अगर मोमेंटम में
25,000 ब्रेकडाउन भी हो गया, बट सस्टेन डेली पे मुश्किल है कि आई डाउट कि वो उसके नीचे सस्टेन कर दे मार्केट। ठीक है। अब आपको बुलिश किस लेवल के ऊपर होना है? अल्ट्रा बुलिश आप 25,500 के ऊपर ही हो सकते हो। अगर मार्केट 25,500 के ऊपर निकलता है नेक्स्ट वीक कभी भी, तो आप पोजिशनली लॉन्ग हो जाना 26,000 के लिए और 26,500 के लिए, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो वो किसी से पूछ के नहीं जाता। यहाँ पे 5 वीक साइडवेज था, ये किसी से पूछ के नहीं गया कि भाई मैं चला जाऊँ, सडनली चला गया। तो अल्ट्रा बुलिश आपको कब हो रहा है? 25,500 के ऊपर। बट स्लाइड बुलिश आप स्विंग बेसिस पे, यहाँ 25,500 के ऊपर पोजिशनल बुलिश है, बट अबव 50% विच इज 25,300 आप स्विंग बुलिश हो सकते हो। अबाउट 25,300 25,500 इजीली आएगा, क्योंकि ये 50% ऑफ प्रायर वीकली कैंडल है। ठीक है। तो ये अपसाइड के लेवल्स हो गए। तो वीकली का ओवरव्यू क्या रहा? वीकली में प्रायर वीकली लो के नीचे क्लोजिंग है, बायस बेरिश है। आई एक्सपेक्ट द लेवल 25,000 टू गेट हिट, बट आई डाउट कि उसके नीचे सस्टेन करेगा। आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, बट आई डाउट। मैं अपना बायस क्लियर करके चल रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि आप बोलते हो कि गिर सकता है, बट इट्स अ गेम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बोलो। गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ठीक है। डेली पे चलते हैं। डेली पे क्या चल रहा है? देखो, डेली पे थोड़ा सा ज़्यादा बेरिश है एज कम्पेयर टू वीकली, एंड मार्केट ने डेली में 20 डीमा के नीचे क्लोजिंग दे दी। तो ऑफिशियली ऑफिशियली टारगेट बनता है 50 डीमा। लास्ट टाइम यही हुआ था यहाँ पे, 50 डीमा सपोर्ट। यहाँ पे तो 20 डीमा था, लास्ट टाइम ये 50 डीमा के आसपास आया था, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई थी। तो यही मैं बता रहा हूँ, अगर हुआ, इफ़ अ ब्रेक डाउन हैपन्स बिलो 25,000, और वही इसलिए मेरे को नेक्स्ट वीक पता है क्या लग रहा है, कि हो सकता है कि एक ब्रेकडाउन आए, बट ये एक पॉइंट ऑफ सपोर्ट ऐड करेगा और मार्केट ऐसा वीकली डोजी बना देगा। ठीक है। ये एक अच्छा खासा प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट है। तो ट्रेड कैसे करना है? सिंपल है, इस रेंज में ट्रेड मत करना। फ्रॉम 25,120 टिल 25,300, इस 280 पॉइंट्स में या 300 पॉइंट्स की रेंज में मत ट्रेड करना। मैं फिर बता रहा हूँ, आपको एज अ ट्रेडर प्रॉफिटेबल रहना है, तो कीप अग्रीइंग टू द थिंग्स विच आई सेड। डू नॉट ट्रेड इन दिस रेंज। गो बुलिश एट द मनी कॉल 17 जुलाई या 24 जुलाई का तब लेना जब आप 25,300 क्रॉस कर दो। इसके ऊपर आर्ली क्लोज ऐसा आ जाए तो ये आप प्राइस एक्शन ट्रेड करना, यहाँ तक का मूव। बट बेरिश कब होना है? 25,120 के नीचे फॉर 25,000। 25,000 मार्केट एक सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा, बट एक 15 मिनट्स 30 मिनट्स का क्लोज ऐसे आता है, तो एक्सपेक्ट 24,800 टू गेट हिट। ठीक है। बट जब मार्केट बेरिश होता है तो बहुत क्विकली बेरिश होता है, तो यहाँ पे मार्केट आपको टाइम नहीं देगा। तो एक 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज हुई 25,120 के नीचे, एक्सपेक्ट 25,000 टू हिट। ठीक है। मैं यहाँ पे और लेवल्स नहीं दे रहा। नेक्स्ट वीक की जो रेंज है वो रहेगी 25,500 से 24,800 तक की। ये 800 700 पॉइंट्स की रेंज में बता रहा हूँ, इसके बियॉन्ड मार्केट नहीं जाना चाहिए फॉर द नेक्स्ट वीक। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आई डाउट, क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत अच्छा खासा एक बेस बिल्ड हुआ है। अगर ये बेस ब्रेकडाउन होता है, ये वाली लेवल 24,500, तो एक्सपेक्ट कि ये सारी चीज़ें सारे लेवल नीचे की तरफ खुलते चले जाएंगे। बट हो सकता है कि मार्केट्स एक बार ये बियर ट्रैप करके आए, यहाँ पे सस्टेन करे और फिर यहाँ से ऊपर चला जाए मार्केट। ठीक है। तो बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज़ है, मैंने क्लियर कर दिया है कि आपको किस लेवल के नीचे। अल्टीमेट चीज़ें, अल्टीमेट ट्रिक टू ट्रेड द मार्केट इज लेवल्स। एक लेवल के ऊपर पूरी दुनिया बेरिश बुलिश होती है, एक लेवल के नीचे पूरी दुनिया बुलिश होती है, एक बेरिश होती है, सॉरी। ठीक है। अब नाउ यहाँ पे क्लियरली एक ट्रेंड लाइन बन रही है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये ट्रेंड लाइन भी एक सपोर्ट का काम करेगी, और यही ट्रेंड लाइन 50 डीमा भी है। तो ये एक बहुत बहुत 24,800 एक बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ सपोर्ट बन सकता है। तो 24,800 और 25,000 इज द सपोर्ट जोन्स फॉर नेक्स्ट वीक। अगर मार्केट हिट करता है तो यू कैन टेक लॉन्ग्स फॉर दिस जर्नी, ये वाला। ठीक है। सिंपल, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। आई एक्सपेक्ट, मैंने अपना बायस वो कर दिया है, और 25,300 और 25,300 के ऊपर ही आपको बुलिश होना है, विच इज़ ऑल्सो प्रायर डेली हाई। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर इसके ऊपर निकला, अच्छा, इंट्रा डे में हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ हमको बुलिश जाना है, कहाँ बेरिश जाना है 15 मिनट्स में। बट डेली में मुझे, क्योंकि प्रायर डेली नो के नीचे बहुत नीचे क्लोजिंग है, तो एक बेरिश है। बट अगर आप सप्लाई डिमांड का खेल देखोगे, तो ये एक बहुत बड़ा डिमांड जोन है। ठीक है। ये पूरा एक बहुत क्लासिक डिमांड जोन है, और ऐसा ही एक सप्लाई जोन है यहाँ पे।
तो इसको मैं रेड से मार्क कर दूंगा। तो बेरिश अगर आपको होना है अल्ट्रा बेरिश पोजिशनली, तो इस जोन के नीचे बेरिश हो गए, और अल्ट्रा बुलिश होना है तो इस जोन के ऊपर हो गए 25,500 फॉर पोजिशनल प्लेयर्स आई एम टॉकिंग अबाउट। स्विंग और इंट्राडे मैंने आपको अपडेट कर दिया। इंट्राडे के लिए मैं 15 मिनट्स में जाऊंगा। आप 15 मिनट्स में देखो, अगर आपको एक शॉर्ट एंट्री बनानी है तो एक पुल बैक आने दो मार्केट का छोटा सा, इसके बाद ऐसे बनाना। बट ये एक पॉइंट ऑफ सपोर्ट मुझे लग रहा है 25,000। और यहाँ पे हर बार अगर आप, इवन इफ यू गो ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, तो आपको एक ये थोड़ा सा ड्राइंग में हटाता हूँ, आपको दिखेगा कि मार्केट हर बार पैनिक फॉल करके यहाँ आता है बट सपोर्ट लेता है। तो ये सिर्फ एक दूसरा तीसरा ही सपोर्ट है मार्केट का। थर्ड हिट होगा तो एक्सपेक्ट कर सकते हो आप कि यहाँ से ये बाउंस मार्केट कर सकता है। और ऊपर किस लेवल तक मार्केट हिट करेगा, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे आप क्रिएट कर लो। तो ये लेवल आ सकता है 25,000, 26,000। फिर 26,000 से अगेन मार्केट एक फॉल क्रिएट करेगा, ऐसे मार्केट चैनल में चल सकता है। ठीक है, आई होप द प्राइस एक्शन इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल गाइस। अब एक बार 15 मिनट्स पे चल लेते हैं और ओपनिंग के बेसिस पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई प्राइस एक्शन ओपनिंग के बेसिस पे कैसे रह सकता है। अब देखो, मार्केट 50-40 पॉइंट्स गैप अप दिखा रहा है। अगर हम बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है रफली इस पॉइंट पे, तो मार्केट इस पूरे एरिया में वॉलेटाइल रहेगा। एंड जो डेटा बन के गया है वाई डेटा मैं अभी डिस्कस करूंगा। अगर मार्केट ओपन भी होता है गैप अप, तो वो गैप अप, दैट गैप अप हैज़ द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी टू अगेन गेट सोल्ड ऑफ। डिपेंड करता है, अगर मार्केट 25,120 को ब्रीच करता है इन मंडे ऑन मंडेज मॉर्निंग, अर्ली क्लोज अगर इसके बिलो आता है या 30 मिनट्स क्लोज इसके बिलो आता है, तो एक्सपेक्ट करो कि ये आपको एक ट्रेड मिल जाएगी यहाँ तक की। और ये ट्रेंड लाइन अगर टूट गई तो ये पैनिक फॉल आपको देखने को मिलेगा स्ट्रेट। बट यहाँ पे कुछ अगर ऐसा प्राइस एक्शन मिल गया तो एक्सपेक्ट करना कि ये बॉटम बन जाएगा मार्केट का। ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ें बताते हुए चल रहा हूँ, सारा विद हिस्ट्री बताते हुए चल रहा हूँ। ऑलराइट। अच्छा, अभी मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल गया तो मैंने आपको केस बता दिया। अगर मार्केट गैप डाउन खुल गया तो वो सेल ऑन राइज होगा। बट गैप डाउन में फिर वही होगा, शॉर्ट्स गए मार्केट में, प्रोबेबिलिटी है पुल बैक की, पुल बैक आने देना। अगर शॉर्ट कैरी करके गए हो और गैप डाउन खुल गया तो यहाँ पे शॉर्ट्स बुक कर लेना। ठीक है, अगर शॉर्ट गैप डाउन खुल गया तो एक पुल बैक आएगा, इसलिए यहाँ पे इस पुल बैक पे फिर प्रॉफिट्स गिव अप मत करना। यहाँ बुक कर लेना, वेट करना, और इस पुल बैक का वेट करना, यहाँ शॉर्ट करना, यहाँ शॉर्ट करना इस प्राइस एक्शन के लिए। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर मार्केट फ्लैट खुल गया तो डू नॉट ट्रेड इन दिस रेंज, जो बोल रहा हूँ उसको मान लो। इस पूरे रेंज में ट्रेड मत करना। आपको इंट्राडे बुलिश जाना है, इस लेवल के ऊपर जाओ, ये आपको लेवल मिलेगा। अच्छा, ये तो आपका चलो स्विंग बुलिश हो गया। आपको इंट्राडे बेसिस पे अगर बुलिश जाना है, वेट फॉर दिस लेवल 25,200। 25,200 के ऊपर ऊपर निकलेगा तो 25,300 इजीली हिट होगा। बट 25,300 एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है। तो अगर 25,200 के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे एक या ट्रेड कर सकते हो, बट यहाँ पे एग्जिट कर देना। एक्सपेक्ट मत करना कि ये भी चला जाएगा, नहीं होगा, वो डेटा नहीं है उसका। हो गया तो वो एक फेक मूव होगा, फिर यहाँ पे अगेन शॉर्ट करना। ठीक है, ऑलराइट। तो फ्लैट पे भी हमने डिस्कस कर लिया। इंट्राडे आपको बेरिश 25,120 के नीचे ही जाना है, बट बुलिश 25,200 के ऊपर जा सकते हो, बट वो दैट इज प्योरली इंट्राडे। 25,200 आप एक ट्रेड लेना है यहाँ पे। अगर आर्ली क्लोज आता है मंडे मॉर्निंग का या 30 मिनट्स क्लोज, और ये यहाँ तक की ट्रेड लेना और बुक कर देना, बस दैट्स इट। ठीक है, आई होप द प्राइस एक्शन इज क्लियर। लेट्स क्विकली गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी में वीकली पे देखो क्या चल रहा है। सेम है, मैं लेवल से एक बार हटा देता हूँ। यहाँ पे एक डोजी क्रिएट हुई है, काइंड ऑफ वीकली डोजी, बट बैंक निफ्टी ने प्रायर वीकली लो के नीचे क्लोज नहीं किया। तो अब प्रायर दोनों वीकली नो का लो है 56,600, तो रफली हम 56,500 एक राउंड लेवल मान लेते हैं। अगर 56,600 टूट जाता है और एक डेली क्लोज नेक्स्ट वीक आ जाता है या आर्ली क्लोज भी आ जाता है, तो एक्सपेक्ट करो ये एक कैंडल मिल जाएगी आपको बड़ी बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो ये लेवल अगर 56,500 निकलता है तो 56,000 बहुत ईजी टारगेट है। और यहीं पे आके बैंक निफ्टी कुछ एक थोड़ा सा सपोर्ट बना भी सकता है। फिर बैंक निफ्टी ये करेगा, फिर ये ब्रेकआउट कर सकता है। ठीक है, तो 56,600 के नीचे सस्टेन करेगा, शॉर्ट की एंट्री बनेगी। लॉन्ग कब जाना है, 57,000 के ऊपर। 57,000 के ऊपर अगेन एक्सपेक्ट 57,350 एंड 57,600 एंड देन 58,000 ऑल टाइम हाई।
बट अगर बैंक निफ्टी नीचे निकलता है 56,500 के तो शॉर्ट बनेगा और ये ही निफ्टी को ड्रैग करेगा। और 56,000 भी टूटा तो एक्सपेक्ट करो फिर 50,000 आ जाएगा मार्केट पे। ठीक है। अगर हम डेली पे चले, डेली में भी इसने हल्का सा प्रोटेक्ट कर लिया 20 डीमा को। तो हो सकता है कि निफ्टी आपको ज़्यादा बेयरिश दिखे, बट ये बैंक निफ्टी एक बार के लिए फिर भी बचा ले मार्केट को। ठीक है। तो 56,500 बहुत क्रूशल लेवल रहेगा मार्केट के लिए। 20 डीमा भी है रफली वहीं पे, और आपका एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन भी है। अगर ये टूटता है तो एक्सपेक्ट 56,000, मतलब एक क्विक 1000 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। ऑलराइट। अगर आप इसको आर्ली में जाके देखोगे तो आर्ली में देखो बैंक निफ्टी का ना प्राइस एक्शन यही चल रहा है शुरू से। बैंक निफ्टी ऊपर जाता है, और ये चीज़ ना निफ्टी में भी हो रही है। ऊपर जाता है, आर्ली 200 ईएमए हिट करता है, ऊपर जाता है, आर्ली 200 ईएमए हिट करता है, आर्ली 200 ईएमए हिट करता है। तो प्रोबेबिलिटी इसलिए मैं बोल रहा हूँ निफ्टी में भी यही है। इफ़ आई टेक यू टू आर्ली, मैंने ये निफ्टी में डिस्कस किया था फ्रॉम मूविंग एवरेज परस्पेक्टिव कि हर बार निफ्टी में भी यही हुआ है। आर्ली में 5 ईएमए से हमेशा 200 या 100 तक एक पुल बैक आता है। ये देखो 200 बाउंस, 200 तक का एक पुल बैक बाउंस, 200 तक का एक पुल बैक, प्रोबेबिलिटी है कि बाउंस हो जाए मार्केट। ठीक है। ऑलराइट। तो मैंने आपको यहाँ पे निफ्टी में एक्सप्लेन कर दिया, नहीं समझ में आया वापस जाके देख लेना। निफ्टी बैंक में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है। अब 15 मिनट्स में चलते हैं। सिंपल सेम वही, ये पूरी रेंज, जस्ट लीव दिस रेंज। इस रेंज के आसपास, इस रेंज के बाहर ही कुछ ट्रेड बनाना। 56,600 के नीचे शॉर्ट एंड 57,000 के ऊपर लॉन्ग। अच्छा, अगर बैंक निफ्टी में इंट्राडे लॉन्ग जाना है, वही सेम 56,800 के ऊपर ये वाली ट्रेड मिल जाएगी आपको। दैट्स इट। ठीक है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो वी विल ऑल्सो डिस्कस व्हाट इज द ओआई डेटा। अब एक बार थोड़े से दूसरे इंडेक्सेस हम डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टार्ट, ये तो एफएमसीजी का है, बट स्टार्ट करते हैं अपन आईटी से। आईटी बहुत वीक है, सिंपल बोल रहा हूँ, बहुत वीक है आईटी। एंड आईटी में एक सेल ऑन राइज का ही अप्रोच रखना, और अभी तो राइज का भी मुझे कोई प्रोस्पेक्ट नहीं दिख रहा है। हमने आईटी में एक रेंज का हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक, ये रेंज नीचे ब्रेकडाउन हो गई है। एक्सपेक्ट करो आईटी में 36,888 हिट होगा, और ये ब्रेकडाउन होते होते ये पूरा मार्केट यहाँ तक हिट कर सकता है। एंड दिस कैन ऑल्सो बी द रीज़न, अगर बैंक निफ्टी भी हल्का सा बेरिश हुआ तो निफ्टी ट्रेंडिंग डाउनसाइड जा सकता है। सो आईटी में अभी मेरे को नो साइंस ऑफ बुलिशनेस दिख रहे हैं, कोई बुलिशनेस नहीं है आईटी में। यू कैन शॉर्ट द आईटी स्टॉक्स। ठीक है। ऑटो, ऑटो ने भी एक बड़ा रेड कैंडल बना है, क्योंकि टाटा मोटर्स में नेगेटिव सिग्नल्स आ रहे हैं, तो टाटा मोटर्स भी सेल ऑन राइज है। निफ्टी मेटल, मेटल भी वीक चल रहा है। ठीक है। निफ्टी मिड कैप्स भी वीक चल रहे हैं। फ्राइडे को जो जितने भी क्लोजेज आए हैं वो सारे के सारे वीक है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा निफ्टी को लेके कौन जाएगा ऊपर। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 25,000 नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, बट मे बी इट कैन ब्रेक। सो देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट वीक। स्मॉल कैप बेरिश, अच्छा सॉरी लेवल्स बताना भूल गया ना मैं। ऑटो में बुलिश होना है आपको सिर्फ, अब पहले हमारी ये लेवल थी बुलिश, आप हो गए 24,000 के ऊपर ही, 23,950 रफली रफली रख लो। अगर ऑटो में सेल ऑन राइज अप्रोच आप रख सकते हो, यू कैन टारगेट टॉप ऑटो स्टॉक्स। 23,400 के नीचे मार्केट एक्सपेक्ट करेगा, और निफ्टी ऑटो एक्सपेक्ट करेगा 23,000। 23,000 एक बड़ा सपोर्ट जोन है, ये ब्रेक होता है तो आईटी में बड़ा ब्रेकडाउन, ऑटो में बड़ा ब्रेकडाउन आ सकता है। मेटल में सिंपल है, हमारी लास्ट वीक की लेवल्स थी ये वाली, तो अब एक्सपेक्ट करो कि मार्केट अगर ब्रेकडाउन करता है 93,9350, ठीक है, 9350 का अगर लेवल ब्रेकडाउन करता है मार्केट ये वाला, तो एक मार्केट आपको मेटल में भी एक फॉल देखने को मिल सकता है 9270 तक और 9000 तक। तो रफली रफली अगर आप ऑटो को भी देखोगे यहाँ तक का एक एक्सपेक्टेड फॉल है, इस सपोर्ट तक का। मेटल में भी यही है। अगर आप मिड कैप देखोगे, मिड कैप में भी एक यही सपोर्ट आ रहा है रफली रफली। तो मिड कैप इंडेक्स, चलो ये ट्रेडेबल नहीं है तो मिड कैप सेलेक्ट एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप उसको ट्रेड कर सको। ठीक है। मिड कैप सेलेक्ट में देखो क्या चल रहा है। मिड कैप सेलेक्ट में सेल ऑन राइज रखना है। सिंपल है, अगर 13,000 ब्रेक होता है मंडे को तो एक्सपेक्ट करो कि एटलीस्ट 12,700 एंड 12,440 या 500 हिट होगा। शॉर्ट्स अगर ले रहे हो तो शॉर्ट्स का एसएल होगा 13,200, 13,000 पे लेना, 200 पॉइंट एसएल एंड 6,700 पॉइंट टारगेट, सिंपल। ठीक है। ये मिड सेलेक्ट का डिस्कशन हो गया। ये तो हमारा निफ्टी बैंक हो गया। एफएमसीजी, एफएमसीजी एक डिफेंसिव सेक्टर है, तो ये बुलिश है, ये वन ऑफ द बुलिश सेक्टर है, क्योंकि सब गिर रहे हैं तो ये बढ़ेगा। तो एक्सपेक्ट करो कि अगर एफएमसीजी 56,400 के ऊपर निकलता है तो 57,000 एंड
58,000 निफ्टी एफएमसीजी रिवर्सल दिखा सकता है। ठीक है, स्मॉल कैप सेम बेरिश ही है, इसमें मैं क्या लेवल बताऊँ, ट्रेड कर नहीं सकते। तो सारे आपके इंडेक्सेस भी हो गए। ठीक है, अब लेट्स क्विकली डिस्कस द ओआई डेटा कि ओआई डेटा भाई क्या इंडिकेट कर रहा है। निफ्टी का ओआई चेंज अगर हम फ्राइडे का देखें, 5 CR ऑफ शॉर्ट्स एंड 1 CR ऑफ लॉन्ग्स। तो अगर मेरे को कोई गैप का बड़ा गैप का चांस दिखता नहीं है। अगर गैप अप हुआ बहुत बड़ा, मतलब 100 and 150 पॉइंट्स, तो समझ लो और 300 पॉइंट्स आ जाएंगे, तो ये सारे के सारे शॉर्ट स्लैप हो जाएंगे। बट इतने एग्रेसिव लॉन्ग्स, इतने एग्रेसिव शॉर्ट्स हैं यहाँ पे, डेटा बहुत बेयरिश है। फ्रेंकली स्पीकिंग इतने एग्रेसिव शॉर्ट्स हैं कि अगर इफ मार्केट इवन गैप अप बाय 100 पॉइंट्स, एक्सपेक्ट कि वो 100 पॉइंट सेल ऑफ हो जाए। पहले सेल ऑफ तो आएगा ही आएगा, बट अगर एक्सेप्शनली हाई गैप अप हो गया 150 200 250 पॉइंट्स, तो ये सारे शॉर्ट्स फिर भागेंगे। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस बना है 25 200 एंड 25 300 पे फॉर द नेक्स्ट वीक। तो एक्सपेक्ट करो कि 25 300 के ऊपर ही मूव आएगा। इसलिए बोल रहा हूँ, अगर इंट्राडे लॉन्ग जाना है, निफ्टी के चार्ट पे बताया था मैंने, 25 200 के ऊपर 300 तक का मूव आ सकता है। बट रियल बुलिश 25 300 के ऊपर ही आएगी, एंड पोजिशनली बुलिश तो 25 500 के ऊपर ही आएगी। ठीक है, टोटल ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखोगे, तो ये देखो आपको ओआई चेन दिखेगा 25 400 से पुट राइटिंग, मतलब बुल्स भागे हैं 25 400 500 से भाग भाग के बुल्स आ गए हैं 300, और मैक्सिमम अब 200 पे भी है। तो बिगेस्ट सपोर्ट है 25,000, जिस पे बहुत ओआई है, पुट ओआई मतलब बहुत बुलिश पोजीशन है। पीसीआर बहुत बेरिश है, 0.6 का टोटल 11 CR के शॉर्ट्स है मार्केट में। सो अच्छा खासा रेजिस्टेंस है 25 200। तो एक अगर पुल भी आता है ना 25 200 तक का, यही मैं निफ्टी पे भी डिस्कस कर रहा हूँ कि इवन इफ अगर एक गैप होने के बाद 200 तक का एक पुल देता है, तो एक्सपेक्ट करना कि 200 एक सप्लाई जोन बनेगा मार्केट में। ओआई डेटा यही बोल रहा है। बिगेस्ट सपोर्ट है 25,000, वो टूटेगा तो ये सब अनवाइंडिंग हो जाएंगे, और 24 500 आके ही रहेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में आप अगर जाओगे, ओआई चेंज फॉर द फ्राइडे सिंपल है, अनवाइंडिंग हुई है लॉन्ग शॉर्ट्स की, लॉन्ग्स की, एंड शॉर्ट्स की एडिशन हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अनवाइंडिंग हुई 57,000 से लॉन्ग्स की। तो बुल्स भागे हैं दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी से। सो सेंटीमेंट ओआई डेटा से भी बेरिश है, काफ़ी बेरिश है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में तो वीकली होता नहीं है, तो उसमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ओआई चेन में टोटल ओपन इंटरेस्ट देखो, यहाँ से भागे हैं लोग 57,000 से। आपको ये जो ग्रीन बार है जिसमें वाइट स्पेस दिख रही है, 57,000 है, और यहाँ पे बुल्स अच्छे खासे हैं अभी। ठीक है, पुट ओआई है 11 लाख का, और कॉल ओआई है 12 लाख का। तो ये 57,000 तगड़ी फाइट चलेगी यहाँ पे। बट फ्राइडे को यहाँ पे स्टैंड चेंज हुआ है, और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है यहाँ पे लॉन्ग्स की, और एडिशन हुआ है शॉर्ट्स का। तो 57,000 वही बैंक में भी, इसलिए मैं आपको यही बता रहा हूँ कि बैंक का इंडेक्स कहाँ चला गया, निफ्टी बैंक, ये रहा। 57,000 तक अगर मार्केट पुल भी करता है, तो ये सप्लाई जोन होगा सेम, दैट इज द सेम लेवल ऑफ 25 200 इन निफ्टी। ठीक है, अच्छा अगर 57,000 के नीचे सस्टेन करता है, तो पहली लेवल 56 500 तो है ही, बट यहाँ पे सपोर्ट है, इसलिए बोल रहा हूँ 56 600 500 टूटा तो 56,000 आएगा, और यहाँ पे तो अल्टीमेट सपोर्ट है। बट आप ये देखो, बुल्स यहाँ से भागे, पुट ओ आई चेंज -28,000, पुट ओ आई चेंज -1 लाख, बट पुट यहाँ से नहीं भागे 56 500 पे। ये एक अच्छा सपोर्ट है, यहाँ पे ऐड ही हुई है, पुट ओ आई चेंज ऐड ही हुआ है। 3,000 का है, बहुत कोई ऐसा खास है नहीं। कॉल ओ आई चेंज यहाँ पे कितना ऐड हुआ है, 30,000 का। तो ठीक है, बेरिश पोजीशन यहाँ भी ज़्यादा ऐड हुई है, बट यहाँ से भागे नहीं है लोग। लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि 5600 पे सपोर्ट आ जाएगा। अल्टीमेट सपोर्ट है 56,000। 56,000 से आई एक्सपेक्ट कि यस देयर कैन बी अ पुल बैक इन द मार्केट 56,000। ठीक है, तो दिस इज एवरीथिंग ट्रेडर्स, दिस वाज द होल वीडियो फॉर यू गाइस। आई होप कि आपको कॉन्टेक्स्ट मिल गया हो कि नेक्स्ट वीक की लेवल्स क्या है, what are the crucial levels, what is the bias, and how you can trade the next week. If you have watched this video till this time, if you have loved watching the video, please give a support with a comment, please give support. मैं मांग नहीं रहा हूँ, मतलब ठीक है, अगर आपकी मर्जी हो कर देना, नहीं मर्जी हो मत करना, इट्स ओके। अगर मेरा कंटेंट बहुत ही अच्छा होगा, तो वो अपने आप उसको बूस्ट मिल जाएगा। ठीक है, स्टे सेफ इन द मार्केट। मैं मंडे को आऊँगा लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। स्टे ट्यून इन द टेलीग्राम ग्रुप। चीयर्स, हैप्पी वीकेंड।